Yep. Yeah, Dev, Okay. you can start. Yeah. So hi all, my name is Devendra. I have total 10 year of experience in UI development. I work with different technology. Like work with Angular, UI, UX as well. And currently I'm working with Salesforce. Okay. So basically what exact a market is, we need to understand first this thing. Okay. So first market demand is like they are looking for the candidate in a different mode and different kind of a miss kind of candidate. Like some in some scenario they are looking for a candidate who have experience some knowledge of backend with front end technology like Angular, React JS. In some scenario they are looking for design purpose in most in the UI UX and some knowledge in technical wise. So this kind of vacancies came. Then what we are lacking means most of the time क्या होता है ना. So we cannot figure it out a proper job or proper you can say proper JD, and we cannot understand and we cannot apply for the uh, proper job. Okay. So for this, the main three reason we have to manage that. The first thing we have to manage with by resume. At least we have a proper and structured resume. So it will increase your, job process. Second thing, job hunting. Job hunting. There are three main aspect. One is first thing is your resume. Second thing, how you applied. Okay, so there are two main portal. Just forget about all other portal. Just focus on two portal only. First is the Naukri.com. Second one is LinkedIn. Okay, most of the call you are getting from the Naukri.com and the LinkedIn. Okay, so how to proceed and how our resume is, so we are looking into this. तो पहले हम लोग ये देखेंगे कि एक्चुअली रिज्यूमे में मेन चीजें क्या क्या हमें बिल्ड करनी होती है और क्या क्या मेन चीजों पे हमें फोकस करना होता है. देन वी विल सी नौकरी पोर्टल में हाउ वी कैन अपना रीच कैसे बढ़ाए. ओके, मोस्टली क्या होता है ना, वो रीच करने के लिए हमें कुछ चीजें फॉलो करनी पड़ती है. समटाइम वी नीड टू यू नो log in every day, we need to update everything every day. Okay, so how we can tackle that thing. Okay, और सेम थिंग अगर लिंक्डइन, बहुत लोग बोलते हैं कि लिंक्डइन से जॉब नहीं आता, बट ये गलत चीज़ है. लिंक्डइन से बहुत अच्छे अच्छे कॉल आते हैं. आई विल शो यू. ओके, after some time. Okay, so today we start with the resume, and if I will try to finish LinkedIn portion today itself. If it is not possible, so LinkedIn and Naukri.com we will cover in today tomorrow session. Okay, so what exactly resume, in resume section most of the हम लोग क्या मेंशन करते हैं, लाइक योर नेम. ओके, कॉन्टैक्ट डिटेल, मेल आईडी होता है, नंबर होता है, एंड दैट्स इट ओनली. सो बट नाउ डेज व्हाट हैपन ना, सम टाइम interviewer and maybe your like interviewer HR don't have much time. Okay, to filter it candidate. So what you do, you can add this thing like provide the contact information. We do that, but you can add like include a short paragraph, mention your designation, domain expertise, and prefer work location. So it's help you. For example, I am a UI developer. Okay, so I have 7 year of experience in IT domain. I'm working as a front end developer, and you can mention multiple domain. Like see, as an Angular developer, it is not Angular development for us. Okay, sometime you can check in the Naukri portal. It will be UI development. Okay, UI developer with Angular, front end developer. Okay, and it is also software engineer as well. So mention that kind of keywords. See, it is totally depend on your keywords. Okay, how you manage your keywords and how you use that keyword. So may put that kind of keyword like a front end development slash Angular development slash UI developer. Okay, then I'm looking for a pan India, but my preferred location is like Pune, Bangalore. So it's really help you to, if the HR can get that in your first line. So maybe.
your chances is increase. Okay, the header section includes most probably your contact details, mobile number, email ID, and try to make your mail ID professional. Don't add multiple numbers and that like that. Don't make that mistake. नॉर्मली अगर आपका मेल आईडी नहीं बन रहा है तो ऐड अ सिंगल डिजिट नंबर, डबल डिजिट नंबर, या फिर आप फादर नेम का फर्स्ट नेम, फर्स्ट कैरेक्टर ऐड ऑन कर सकते हो, या फिर नेम को शफल कर सकते हो. फॉर एग्जांपल माय नेम इज देवेंद्र कोहले. ओके, सो आई कैन डू कोहले देवेंद्र. I can do Devin dot Kohole. Okay. Don't use X additional, double character, multiple character like XXX, A, B, 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 and 2, 3, 4, 5, 6. Okay. It is also impact on your resume. Okay. Then second most important thing, limit your resume in 2 page only. Try to make a resume in 2 pages only. Okay. दो, उसको ज्यादा लंबा मत बनाइए. ट्राई कीजिए 2 पेज में आपका पूरा रिज्यूमे कवर हो. ओके. अगर नहीं हो रहा है तो 2 सेक्शन में डिवाइड कीजिए. एक सेक्शन में आपके जो की सेक्शन होता है जिसमें स्किल और हम चीजें एक्सप्लोर कर सकते हैं, शोकेस कर सकते हैं, वो कीजिए. और एक साइड में आपके एक्सपीरियंस वगैरह शोकेस कीजिए. ओके. देन वी आर मूविंग, हेड सेक्शन हो गया. हेड सेक्शन के बाद देयर इज अ प्रोफेशनल समरी. अब प्रोफेशनल समरी क्या होता है? बेसिकली इट इज ओवरऑल समरी अबाउट यू. फॉर एग्जाम्पल, आप 8-9 साल से काम कर रहे हो, राइट? तो 8-9 साल से आप क्या काम कर रहे हो, कौन से टेक्नोलॉजी में काम कर रहे हो, और कैसे काम कर रहे हो, वो चीजें आपको सिर्फ 7 से 8 पॉइंटर में आपको एक्सप्लेन करनी होती है. Most everything, you have to try everything, it should be in pointer. Okay. Pointer, don't use table format वगैरह, don't मतलब उतना मत यूज करो. ट्राई करो पॉइंटर से ही जाओगे आप. ठीक है. सबसे पहली लाइन जो है वो आप एक्सप्लेन कर सकते हो योर टोटल एक्सपीरियंस इफ यू हैव. और जिनके पास एक्सपीरियंस नहीं है, फॉर एग्जांपल फ्रेशर है, तो उनका इंटर्नशिप होगा, 6 मंथ इंटर्नशिप, या फिर कोई प्रोजेक्ट आपने किए होंगे, तो वो चीज़ों के बारे में आप मेंशन कर सकते हो. करंट डेजिग्नेशन, जो आपका करंट डेजिग्नेशन है और करंट ऑर्गेनाइजेशन, वो मस्ट मेंशन कीजिए. देन अ समरी ऑफ करंट रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी. सो इसमें आपको 3 पॉइंट या 4 पॉइंटर होने चाहिए इस चीज के. पहले फर्स्ट और सेकंड पॉइंट एक एक पॉइंटर हो गया. ओके. बट करंट रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी जिसमें आपका क्या आएगा, फॉर एग्जांपल आई एम वर्किंग फॉर द क्लाइंट, आई शो यू द डेमो resume as well. For example, this is my name, my designation. Okay, I mentioned the both. See, UI UX and Salesforce LWC. For example, you are into Angular, mention as a UI developer, comma, front end developer, and Angular developer. So it will help you. Okay. And mobile number, see here my name is Devin dot Kohle, because ये नाम से बहुत थे तो मैं मुझे एक्स और टू लगाना पड़ा. बट डोंट मेक, थोड़ा उसको अलग, बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स मत बनाइए. ओके. देन प्रोफेशनल समरी, मैंने जो लाइन बोला वो लाइन यहाँ पे ऐड नहीं किया है, बट आई विल शो यू कि वो कैसे ऐड कर रही हूँ. ठीक है. सो फर्स्ट थिंग होता है आपका यूआई डेवलपमेंट अक्रॉस, जो मेरा 7 ईयर का एक्सपीरियंस है. वर्डिंग थोड़े हेवी यूज कीजिए. वर्डिंग हेवी यूज करने के फायदे बहुत होते हैं, क्योंकि वो आप एटीएस में थोड़ा सा हेल्प करता है. ठीक है. देन मैंने बोला करंट वर्किंग लीडिंग सॉफ्टवेयर इंजीनियर, जो भी आपका है, कहाँ पे कर रहे हो, आपका क्लाइंट कौन सा है, टेक्नोलॉजी कौन सा है, वन एक वन पैरा में, शॉर्ट पैरा में खत्म कीजिए. देन बाकी की जो स्किल है, सी currently I am working with this, that's why I'm using experience. But previously I worked with the different technology, but currently I'm not working that, so I'm using proficient word. Okay. This word matters. Okay. If you are looking to JD, सो ये वर्ड्स बहुत इम्पैक्ट करते हैं. मैंने पहले यूआई यूएक्स डिजाइनिंग में काम किया है, तो मैं आई एम प्रोफिशिएंट इन दैट. आई एम इट मींस लाइक आई एम स्किल्ड इन दिस टेक्नोलॉजी. ओके. तो ये वर्ड्स का भी इम्पैक्ट अलग पड़ता है. ठीक है. देन उसके बाद में मेरा ये टोटल समरी आया कि मैंने कैसे ट्रांसलिंग डिजाइनिंग फ्रंट एंड कोडिंग टू, जैसे मैं कोडिंग को कन्वर्ट करता हूँ, फिग्मा को कन्वर्ट करता हूँ कोडिंग में. देन
यूजर फ्रेंडली ऐसा बिजनेस मीटिंग जो चीजें हैंडल करता हो, राइट। तो ये चीजें मैंने यहाँ पे मेंशन की है। ओके, नाउ दिस इज अ प्रोफेशनल समरी, इट शुड बी इन लाइक दिस, लाइक क्लीन कोडिंग वगैरह, ये चीज आप अपने सॉफ्ट स्किल भी ऐड ऑन कर सकते हो उसमें, ठीक है। दिन आते हैं एजुकेशन पे। मोस्ट ऑफ द क्या होता है ना, हम लोग एजुकेशन को बहुत ज्यादा हाईलाइट करते हैं मिडल पोर्शन में, डोंट हाईलाइट Devin, दिस Devin, थिंग। sorry to यस, disturb. Consider fresher also. यस, Whenever you are explaining a point, now mention it from a fresher perspective also, यस, because श्योर, श्योर। everyone doesn't have that professional summary or something. Okay? ओके, ओके, Yeah. ओके, सॉरी, सो आई मिस आउट दैट पॉइंट। फॉर एग्जांपल यू आर द फ्रेशर, एटलीस्ट आपने अगर कुछ इंटर्नशिप किया होगा, कुछ प्रोजेक्ट किया हो, तो आप सेम चीजें आपको उससे रिप्लेस करना है इन चीजों, लाइक आई डिड इंटर्नशिप इन कोड फर्स्ट, ओके। लाइक वॉट एवर आप, आपका डेजिग्नेशन तो जो भी ऐसा फ्रंट एंड होगा, यूआई होगा, जो भी वो मेंशन कीजिए, ठीक है। तो ये इसमें प्रोफिशिएंट में अगर नहीं है तो आप एक्सपीरियंस डाल के आपके जितने भी की स्किल है वो ऐड ऑन कीजिए। और यहाँ पे आपको जो भी चीजें, अगर ये तीनों पॉइंट में आपको क्या डालना है, आपकी स्ट्रेंथ क्या है, या सॉफ्ट स्किल बोलते हैं ना हम लोग, लाइक लाइक आई एम अ टीम लीडर, टीम कंट्रीब्यूटर वगैरह, ये चीजें होती है, या क्विक लर्नर हो गया। तो ये चीजों को आप है ना प्रेजेंट कीजिए, ठीक है। प्रोफेशनल समरी में आपको इस समरी में आपके बारे में फुल डिटेल होनी चाहिए जो कि आपके प्रोफाइल से रिलेट करती है, ठीक है। ओके, सो फ्रेशर के लिए ये चीजें होती है, ठीक है। सेकेंड थिंग, अब मेन चीज होती है कि एक्सपीरियंस वालों को मोस्ट ऑफ दी इवेल्युएट किया जाता है उनके कोर स्किल पे, लाइक एक कोर जो आपकी एक्सपर्टीज एरिया हो गया, लाइक लाइक अजाइल मेथोडोलॉजी वगैरह ये चीज़ों, या फिर आपकी स्किल हो गया टेक्निकल स्किल और एक्सपीरियंस के बेस पे। ओके, बट फ्रेशर को मोस्ट ऑफ दी आपका फोकस होता है जो आपके करिकुलम में जो भी आपके मार्क्स हो गए, आपने कितने रैंक, लाइक टेंथ में कितने परसेंट, ट्वेल्थ, डिप्लोमा, डिग्री। तो ये चीज पे उनका फोकस ज्यादा होता है। मे बी समटाइम दे क्लियरली मेंशन दैट द पर्सन शुड बी हैविंग इंजीनियरिंग डिग्री इन लाइक पर्टिकुलर डोमेन एज वेल, ओके। सो ये चीज का इम्पैक्ट फ्रेशर के लिए ज्यादा पड़ता है। सो मेक श्योर दैट एक्सपीरियंस पर्सन के लिए मोस्ट रेयरली हो ये चीजें होती है, बट फ्रेशर लोगों को ये चीज ध्यान रखना है कि आपको ये चीजें ज्यादा हाईलाइट करने। एक्सपीरियंस बंदों ने नहीं एक्सपीरियंस उतना हाईलाइट किया तो भी चलेगा। और एक चीज आती है कि आपको इसमें परसेंटेज मेंशन करना है या नहीं करना है। फॉर फ्रेशर यू हैव टू डू मस्ट, बिकॉज आपको इवेलुएट करने के लिए सेकंड ऑप्शन नहीं है उनके पास। बट अगर एक्सपीरियंस हो तो आपने अपने पॉइंटर्स परसेंटेज मेंशन नहीं किए तो भी चलेगा। ओके, सो नाउ वी आर मूविंग टू नेक्स्ट concept, like it is the most important thing. There is a subtitle as well, you can like use a skill highlight, professional domain knowledge, and you can use many more I have mentioned here, okay. So this is the concept, this is not a technology. This kind of like performance optimization, it is a concept where we have optimized our web application. Agile methodology, it is a concept where we have a Jira, there is a multiple thing was there, okay। तो यहाँ पे हम लोग जो कंसेप्ट और जो चीजें हम जानते हैं तो वो मेंशन, जैसे फ्रंट एंड टेक्नोलॉजी फ्रेमवर्क हो गया। पर फ्रंट एंड टेक्नोलॉजी में फ्रेमवर्क बहुत सारे हैं, राइट। तो ये चीजें रिस्पॉन्सिव वेब डिजाइन, इसमें बहुत चीजें आती है, लाइक हम लोग बाय यूजिंग बूटस्ट्रैप, यूआई मटेरियल वगैरह हम बहुत कुछ यूज करते हैं। तो ये चीजें ऐसे मेंशन करना जरूरी है, इम्पैक्ट अलग पड़ता है, ठीक है। ये मेंशन क्यों करना पड़ता है हम लेटर देखेंगे, क्योंकि इसके अलग अलग पार्ट आपको जब आप जेडी देखोगे ना, जेडी में मेंशन होता है, ठीक है। तो आप 10 जेडी रेफर करोगे, आपको समझ में आ जाएगा कि ये चीज डालना क्यों मैंडेटरी है, ठीक है। देन आते टेक्निकल स्किल पे, ओके। तो मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है ना, हम लोग कुछ चीजें नहीं मेंशन कर, जैसे कोई कोई गिटअप मेंशन नहीं करता है, जीरा मेंशन नहीं करता है, इवन कभी कभी हम वीएस कोड ट्राई टू ऐड एज मच एज पॉसिबल, ओके। जरूरी नहीं है कि आप टेक्सटाइल टेक, मतलब आप जावा स्क्रिप्ट, जेक्वेरी, एंगुलर, लाइक सेल्सफोर्स जैसे मेरा की स्किल है, ठीक है, मैंने इतना मेंशन किया।
आप जितना चाहे जितना ज्यादा ऐड ऑन कर सकते हो, बिकॉज इट इज हेल्पफुल टू यू। ओके। सो इसमें कोई नहीं है, और डोंट डू दैट इन अ डिफरेंट वे, लाइक वो जो कर रहा है ना, बैक एंड, फ्रंट एंड, देन सॉफ्टवेयर, डोंट डू दैट। ओनली यू मेक योर रिज्यूमे सिंपल। ऐसा सॉफ्टवेयर बैक एंड ऐसा मत कीजिए, इससे थोड़ा सा क्या होता है ना, एचआर को समझ में नहीं आता इसकी कोर स्किल क्या है, ठीक है। तो जस्ट मेक इट सिंपल पॉइंटर, और सब कुछ डालिए सॉफ्टवेयर जो भी आते, लाइक सी, जीरा, गिटहब, ये अलग अलग टूल है, इट इज डिप्लॉयमेंट के लिए हम लोग यूज करते हैं, ठीक है। CI/CD के लिए यूज करते हैं, जीरा अजाइल मेथोडोलॉजी के लिए सॉफ्टवेयर है, राइट। रेस्ट एपीआई इज अ पार्ट ऑफ टेक्नोलॉजी, ये एक फ्रेमवर्क है, CSS फ्रेमवर्क, ओके। एंड ये लैंग्वेज हो गया, ये एंगुलर फ्रेमवर्क हो गया। सो ये सब चीजें मिक्सअप आप लिखोगे, प्रॉपर वन बाय वन सीक्वेंस मेंशन करोगे, हो जाएगा। देन वर्क एक्सपीरियंस, मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग फॉर फ्रेशर, दे डोंट हैव, यू कैन ऐड योर प्रोजेक्ट। देखो प्रोजेक्ट आपके पास नहीं होंगे, बट ट्राई करो कि एटलीस्ट आप दो तीन प्रोजेक्ट स्क्रैच से बनाओ। वो एज एन आप किसी के मतलब इंटर्नशिप में किया होगा, या फिर आप खुद होके कर रहे हो, राइट, फ्रॉम लास्ट 5 मंथ, 6 मंथ, ये चीजें मेंशन करनी है आपको यहाँ पे। आप जब भी आप प्रोफाइल समरी में अगर आप फ्रेशर हो, तो यहाँ पे मेंशन करो कि लास्ट 6 मंथ और 1 ईयर आई एम वर्किंग ऑन दिस कोडिंग, मैंने क्या क्या सीखे, ये चीजें आपको यहाँ मेंशन करनी है। और सिमिलरली अकॉर्डिंग टू दैट, ये सब आपके यहाँ पे आएगा। जैसे अगर वर्क एक्सपीरियंस नहीं है, तो एटलीस्ट जहाँ पे आप इंटर्नशिप कर रहे हो वहाँ का मेंशन करो, ड्यूरेशन, लोकेशन, वहाँ पे आपका डिजिग्नेशन क्या था, ऑब्वियस से इंटर्न होगा, या मे बी आप कभी कभी प्रमोटेड होते हो, है ना। तो वो एक ही, वो दो अलग डेजिग्नेशन आप डाल सकते हो, लाइक फॉर एग्जांपल मैं वर्चुसा के लिए काम करता हूँ, पहले मैं सीनियर डेवलपर था, देन आई प्रमोटेड टू लीड, ओके। सो अगर आपके पास डेटा नहीं है तो मेंशन दैट वे, ओके। बिकॉज क्या होता है, जब आप प्रमोट होते हैं तो आपके रोल्स रिस्पॉन्सिबिलिटी चेंज होती है, राइट। तो उसमें ये चीज बढ़ेगी। तो रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी मेजर आपके क्या पॉइंट है, लाइक मेरे मेजर पॉइंट होते हैं कि आई एम अ पर्सन who are converting the Figma into the coding by using HTML, CSS, Bootstrap, JavaScript. And second thing, I'm taking care of my like juniors, like एंड ऐसे चार पांच पॉइंटर होते हैं, जैसे कि, और आई एम फॉलोइंग अजाइल मेथोडोलॉजी, आई एम आई एम टेकिंग अ पार्टिसिपेट इन लाइक डिप्लॉयमेंट में मेरा पार्टिसिपेंट हो। तो ऐसे जितने भी की रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो आपको मेंशन करना है। आपकी 4 कंपनी, 5, जितने भी कंपनी हो गया, सबका मेंशन करो। बट मोस्ट प्रोबेबली ट्राई करो कि जो भी आपकी लास्ट कंपनी है उसको बहुत अच्छे से आपको हाईलाइट करना है, ठीक है। सो इसके अल्टरनेटिव नाउ, जैसे वर्क एक्सपीरियंस को आप अल्टर प्रोफेशनल एक्सपीरियंस, एम्प्लॉय हिस्ट्री, करियर हाईलाइट, वर्क हिस्ट्री, ये आप प्रोफेशनल नाम, अलग नाम भी दे सकते हो, जरूरी नहीं है। बट इट इज द बेस्ट नेम जो मैंने दिए, ये बेस्ट नेम है एज एन ATS, ओके। देन प्रोजेक्ट अंडरटेकर, सो प्रोजेक्ट अंडरटेकर में क्या होता है, फॉर एग्जांपल फॉर फ्रेशर एंड एक्सपीरियंस बोथ ऑफ यू, बोथ दोनों के लिए है। तो बेसिकली जो भी आपने प्रोजेक्ट किया उसका नाम, फॉर एग्जांपल आपने स्विगी जोमेटो का क्लोन किया, सो यू कैन मेंशन दैट आई कैन मेक अ स्विगी जोमेटो का क्लोन बनाया, ठीक है। रोल क्या था, लाइक आपने फ्रंट एंड काम किया है, बैक एंड काम किया है, उसके अकॉर्डिंग लाइक आई एम अ फ्रंट एंड डेवलपर, एंड ड्यूरेशन कितना टाइम लगा, डोमेन, ओके। So it is the most important thing. Domain means like Swiggy, Zomato, it is e-commerce kind of portal, right? So you have to mention that. Like I'm working with healthcare, so I'm mentioning healthcare, and maybe as per my knowledge, Chetan working with the banking domain. So he mentioned is the banking domain or finance domain. Okay. So it is importance. Technology stack, it means you can whatever technology you use, like Angular, React JS, HTML, CSS, Bootstrap, mention here. Give a short brief about description, project description about the project. Like Swiggy Zomato, you know about Swiggy Zomato. It is a delivery portal. Okay. So write a 3 line para. Okay. And key responsibility in that project.
आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या थी, लाइक एज आई वर्क एज एन फ्रंट एंड डेवलपर इन दैट प्रोजेक्ट, द माई रोल इज लाइक API calling, like API integration, showing the data in a front data, and creating data table, handling backend वगैरह, जो भी आपके मेन की स्किल होंगे वो आपको मेंशन करना है। और ट्राई करो कि ये सब चीज़ें आप खुद होके लिखो, ना कि किसी थर्ड पार्टी या चैट जीपीटी का यूज करो, बिकॉज वो आपको प्रॉपर डेटा नहीं मिलेगा। ठीक है, तो ट्राई करो। और ये नेक्स्ट पोर्शन है अचीवमेंट का। ठीक है, हम एक बार ये सब कुछ कर लेंगे, देन मैं आपको डेमो रिज्यूमे भी दिखाऊंगा, देन उसके बाद में क्वेश्चन वगैरह हम लोग आगे लेंगे। ठीक है, सो अचीवमेंट, सो मोस्ट ऑफ द थिंग अचीवमेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसका भी अलग इम्पैक्ट पड़ता है। ठीक है, कभी कभी जो मोस्ट अचीवमेंट में क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए। सो करिकुलर में अगर आप टॉपर हो, रैंकिंग अच्छी है आपका 10 12 में, ओके, सो आप वो मेंशन कर सकते हो। स्पोर्ट एक्टिविटी एक्टिविटी में कोई अवार्ड वगैरह मिला है वो मेंशन कर सकते हो। प्रोजेक्ट प्रोजेक्ट अप्रिसिएशन वगैरह कुछ मिला है, लाइक फॉर एग्जांपल कि आपको किसी सर्टिफिकेट मिला है, अप्रिसिएशन मिला है, तो वो मेंशन कर सकते हो। और टेक कंपटीशन जैसे आई डू मोस्टली, मैंने हैकाथॉन में पार्टिसिपेट किया था। इट इज़ लाइक 18 आवर्स कंटिन्यूस कोडिंग वाला, जिसमें हमने रात भर कोडिंग किया था। ओके, एंड वी आर फर्स्ट रनर अप, सो आई मेंशन दैट इन दैन डेमो रिज्यूमे। ओके, then next portion is certification. If you have mention that, otherwise आप mention अगर नहीं होंगे तो चलेगा, mention नहीं किया तो भी, लेकिन होगा तो ट्राई करो mention करने का। ओके, देन सॉफ्ट स्किल में आपका क्या होता है, टीम मैनेजमेंट, लीडर क्वालिटी, ये आपके सॉफ्ट स्किल आप ये मेंशन कर सकते हो। देखो, ये तीनों चीजों में कभी कंफ्यूज नहीं होना है। सॉफ्ट स्किल्स इट इज अ डिफरेंट थिंग, ये इनबिल्ड इनबिल्ड होती है पर्टिकुलर पर्सन में। ओके, सो ये चीजें आपको खुद फाइंड आउट करके, फिगर आउट करके मेंशन करनी होती है। ठीक है, और देन पर्सनल डिटेल में दो, ज्यादा कुछ मेंशन करने की जरूरत नहीं है। इसमें सिर्फ आपको डेट ऑफ बर्थ, लैंग्वेज जो नॉन लैंग्वेज, करंट एड्रेस आप मेंशन कर सकते हो, और देन आपको मैरिटल स्टेटस जो भी आपका होगा, लाइक मैरिड वगैरह, वो आप मेंशन करना, ये जरूरी है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्यों बता दो, एज एन फीमेल मोस्ट ऑफ द कंपनी की रिक्वायरमेंट होती है ना, तो क्या होता है कि इट इज़ अ लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट। तो अगर आप मैरिड, जस्ट मैरिड हो, सो मे बी आप रिलोकेट हो रहे हो, उसके हिसाब से भी देखा जाता है। सेकेंड थिंग होता है, सम सिनारियो में मे बी सम लाइक कुछ गर्ल्स शादी हो जाती है उनकी, उनका वो प्रेगनेंसी का रहता है, मैटरनिटी लीव्स वगैरह का रहता है। सो दैट्स व्हाई इट इज मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग। कभी कभी आपके इंटरव्यू राउंड सब क्लियर होने के बाद भी, जस्ट बिकॉज ऑफ you have married, you are not able to relocate, or you have a future plan, okay, so due to that आप रिजेक्ट हो सकते हो। फॉर मोस्टली फॉर फीमेल, जस्ट fill दिस फील्ड। ओके, आपका जो भी रहेगा प्रॉपर वे से आपको ये मेंशन करना है। ओके, देन आई एम एक्सप्लेनिंग द रिज्यूमे। इट इज अ डेमो रिज्यूमे ओनली, मैंने इसको ज्यादा कुछ किया नहीं, 4 पेजेस का है, बट आई विल मेक इट इन 2 पेजेस। हाउ आई विल डू, वो मैं आपको बस समझा दूंगा तो आप समझ जाओगे। तो बेसिकली माई नेम, यहाँ पे मेरा डेजिग्नेशन, फोन नंबर, मेल आईडी। यहाँ पे मैंने बोला था एक शॉर्ट पैराग्राफ आएगा, दैट विल बी मेंशन लाइक आई एम UI डेवलपर having 7 years of experience looking into opportunity in UI UX Salesforce LWC and Angular development. I'm looking into Pune location, but I'm open to pan India. So must add this line. Okay, then professional summary, I already explained that thing. Okay, I'm not मैं ब्रीफ में नहीं जा रहा हूँ, बट ओवरव्यू के हिसाब से इतना सफिशिएंट है। 8 9 पॉइंटर के ज्यादा मत डालिए, जितना शॉर्ट कर सकते हैं शॉर्ट रखिए। ये कोर कंपेटेंस है, ये आपको डालना मस्ट है। ठीक है, और ये क्यों डालना मस्ट है, हम नेक्स्ट जब नौकरी पोर्टल पे जे जॉब डिस्क्रिप्शन देखेंगे ना, तब मैं समझाऊंगा। ओके, इन टूल्स एंड टेक्नोलॉजी में जैसे देखो, सॉफ्टवेयर अडोबी फोटोशॉप, इट इज अ सॉफ्टवेयर। ओके, नोटपैड प्लस प्लस, देखो कभी कभी ये चीजें भी मैटर करती है, ये डिपेंड करता है JD पे। तो ट्राई करो जितना आप मेंशन कर सकते हो मेंशन करने का। ओके, सो हियर सी,
So responsibility at Virtusa. So it is my current company. So that's why I mentioned that the name of current company. Okay. And in current company, I have a different responsibility. Okay. Like I'm a lead, I'm a leading a team. Okay. And my role, my designation in Salesforce. So I'm working with closely with Salesforce side. Okay. तो Salesforce के रिगार्डिंग मैंने इसको एक्सप्लेन किया है. ओके. अभी तो मैंने सिर्फ करंट कंपनी का डाला है, बट आपको अदर कंपनी का भी डालना पड़ेगा. मैंने सिर्फ एक कंपनी का डाला है, आपको बाकी कंपनियों का भी डालना पड़ेगा. लाइक फॉर एग्जांपल आपने दो कंपनी तीन कंपनी के साथ काम किया होगा, तो आपको तीनों कंपनी का मेंशन करना है. फ्रेशर, आप इंटर्नशिप कर रहे हो, कैसे कोर्सेज किए, क्लासेस किए, आप वहाँ का मेंशन कर सकते हो. ठीक है. फ्रेशर है इसीलिए हमारे पास कुछ नहीं है, ऐसा मत कीजिए. ये चीजें आपको ऐड ऑन करना है, क्योंकि ये चीजों में आपका क्या होता है मैं लास्ट में बताऊंगा. ये चीजें में आपके बेनिफिट्स क्या होते हैं वो बताऊंगा. ठीक है. देन ऑर्गेनाइजेशन रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये भी एक चीज होती है. ये तो आपकी वर्चुसा की जो मेन कोर टेक्निकल रिस्पॉन्सिबिलिटी. ऑर्गेनाइजेशन रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? मेंटोरिंग जूनियर. जैसे मैं सीनियर लीड डेवलपर हूँ, तो मेरी ऑर्गेनाइजेशन वाइज मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है कि मैं मेंटर हूँ. एज एन मेंटर मैं जूनियर्स को ये करूँ, गाइड करूँ केटी के, या फिर उनको इंस्पायर करूँ. देन कंट्रीब्यूट टू डेवलपर टू सॉफ्टवेयर इंजीनियर कंपेटर से. ओके. देन उसके बाद में एजुकेशन, देखो मैंने एकदम सिंपल एम डाला है. डिग्री बी, ईयर 2000 एंड यूनिवर्सिटी नेम. दैट्स इट ओनली. बिकॉज सी, अगर मैं पूरा डालूंगा इट विल टेक मोर स्पेस, और उसकी वजह से क्या हो जाएगा, मेरे बहुत सी जगह चले जाएगी उसमें. ओके. Then achievement, I have JNAA certification, platform PD1, it is Salesforce certification. I have AWS partner certification for cloud and sales. Okay. सो मेंशन करो अगर होंगे तो. अचीवमेंट यहाँ पे मैंने मेंशन नहीं करे. ठीक है. सर्टिफिकेशन अचीवमेंट आप कंबाइन मेंशन कर सकते हो या अलग अलग भी कर सकते हो. ठीक है. वो आप पे डिपेंड करता है. आई टोल्ड यू आपको क्या करना है. आपको आपको आपका रिज्यूमे दो पेज में, कैसे भी दो, मैक्स थ्री में आपको मैनेज करना है. ओके. सो करंट प्रोजेक्ट, एज आई टोल्ड यू, प्रोजेक्ट नेम, रोल, ड्यूरेशन, डोमेन एंड टेक्नोलॉजी. लाइक सेल्सफोर्स, लाइटिंग, HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट, और दिस इज आई यूज. ओके. और बोस्टन प्रोजेक्ट के बारे में एक शॉर्ट डिस्क्रिप्शन जो मेरा हेल्थ केयर डोमेन का है उसका दिया है. देन वहाँ पे मेरा रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, डिजाइन एंड इम्प्लीमेंटेशन यूजर इंटरफेस यूजिंग सेल्सफोर्स लाइटनिंग. ओके. फर्स्ट पॉइंट वही जो मैंने बताया, मोस्ट ऑफ द कॉमन चीज़ें होती है. कंपोनेंट डेवलपमेंट जो मैं करता हूँ, जैसे आप एंगुलर में कंपोनेंट बनाते हो वैसे ही सेल्सफोर्स में LWC में कंपोनेंट क्रिएट होता है, वो चीज़ें. क्रॉस फंक्शन कोलैबोरेशन, जैसे आप क्रॉस फंक्शन कोलैबोरेशन मतलब अलग अलग ब्राउजर पे हम कंपैटिबिलिटी देखते हैं ना, वो. सिमिलर परफॉर्मेंस ऑप्टिमाइजेशन, आपकी वेब एप्लीकेशन, ये सीनियर लेवल की बातें हैं, बट आप 2 ईयर्स 3 ईयर्स के हिसाब से आप लिखोगे. मैंने ये अपने 6 to 7 ईयर के जो भी एज एन सीनियर और एज अ लीड काम कर रहे हैं उनके हिसाब से बनाया है. ठीक है. हेलो. हम्म. ओके. सो गाइडिंग जूनियर डेवलपर, ये चीज़ें सेम चीज़ें मैंने मेंशन करी है. ठीक है. देन अभी वर्चुसा के बाद के प्रोजेक्ट जो मैंने बजाज फाइनेंस के लिए काम किया है, वहाँ पे मेरा रोल्स एज अ सेल्स फोर्स ही था, बट मेरे स्किल रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी थोड़ा अलग थे, तो मैंने सिर्फ 4 पॉइंटर में ख़त्म किए. आपका रिसेंट प्रोजेक्ट पूरी तरह मेंशन करना चाहिए, क्योंकि आपके रिसेंट प्रोजेक्ट में आपको बहुत से क्वेश्चन रिसेंट प्रोजेक्ट पे होते हैं, ना कि आपके प्रीवियस प्रोजेक्ट पे. बट उनका इंटरेस्ट रहा तो आप उस पे भी पूछ सकते हैं, लेकिन उस पे थोड़े कम पॉइंटर रखिए, क्योंकि हमें जगह भी मैनेज करनी है. ठीक है. सेम TVS मोटर रडार बाइक, आई वर्क विद दैट. यहाँ थोड़े पॉइंटर अलग है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे मुझे हाईलाइट करना है Devin, मेरी एक स्किल. sorry यस. to interrupt. Use more English. ओके. Yeah. ओके. So here, what happened here? The technology is changed. The first two previous project is in Salesforce. Okay, so I mentioned these two project. Then I highlight this project because it is in Sitecore and Sitecore technology.
So that's why I mentioned that one, that project. And then also I mentioned one SAP project. It is in Angular. So according to my different key skill, I mentioned the project. Don't repeat your project with the same technology. If you have that much potential with different technology, for example, you working with the Angular, React.js, Next.js, or you have got exposure in any other technology. So try to must explore that thing. Okay, it will help you. So how it will help you? So I'll let you know how it's help you. Just I'm showing you something. See. So it is visible to all. Okay. Yes. So this is a JD. Okay. So and this is a analyzing job. It is a tool. So tomorrow maybe we will look into this if we got the time. So in JD, what they are showing actually HTML, it is in my resume, CSS, it is my resume, see SVG, it is not in my resume. Okay. Cross browser command, this word is also it is not in my resume. Accessibility, this word is not my in my resume. Okay. So that's why it is showing a red blocker. So due to that analyzing, you have to add this pointer in your resume. Okay, so how you can add and where you can add this pointer in your project. For example, I'm sharing my previous resume share. See, so here you can add cross browser compatibility word here as well, or here as well, here in project as well. Okay, so it will help you to increase your pointers in terms of the in terms of the analyzing or ATS friendly resume. Okay, so you have to search out as per your expertise, as per your role, and just go through key responsibility and some 5 to 10 JD, and as per your JD response, add those words in your resume as per your experience. Okay, see, it is for cross browser compatibility. Yes, I didn't use that word. I didn't use accessibility. Due to that, the my score is 37 only. Okay, so add this thing. So do you have any question regarding this resume? So please go ahead. हाय सर, गुड आफ्टरनून। हाँ, tell me. सर मैं बोल रहा हूँ कि जैसे आपने रिज्यूम शो किया सर, तो हम्म एज अ फ्रेशर सर इतनी सारी स्किल वगैरह मैं मेंशन करूंगा, हम्म तो फिर रिज्यूम की जो लेंथ है सर वो इंक्रीज हो जाएगी। और मोस्ट ऑफ द केसेस सर बोला गया है कि रिज्यूम की जो पेज है एक पेज हम्म से ज्यादा नहीं होना चाहिए, इवन इफ यू हैव अ 2 ईयर ऑफ एक्सपीरियंस। तो सर आपने जो दिखाया है टेम्पलेट सर, इसमें तो सर बहुत ज्यादा लेंथ है पेज के, तो सर कैसे मैनेज करूंगा अगर Yeah, मेरे I पास एक साल mentioned, का। right. I mentioned this thing. See, if you limit to 2 page only, okay, 2 पेज, see 1 पेज में तो रिज्यूमे कुछ भी नहीं होता है कोई। 1 पेज में आपको ATS भी आपका रिज्यूमे रिजेक्ट कर देगा। ओके, सो इट शुड बी 2 पेज, और उसको आप लेफ्ट एंड राइट से मैनेज करो। फॉर एग्जाम्पल, आई एम श्योर, देखो ये मैंने सिर्फ कंटेंट शो करने के लिए किया है। तो मैं आई विल कैसे मैंने मैनेज करूंगा, आई विल मेक अ सेक्शन हियर, एक सेक्शन बनाऊंगा यहाँ पे कॉलम। ओके, आई विल मेक अ सेक्शन in left hand side where I will mention this thing, I will mention this thing, and also I mention education, my achievements, and at the end my additional information. So those information, the pointer and single word like answer, I will mention that thing in left side. Okay, and this of kind of pointer I will mention it right hand side. Okay, so it will reduce your length. I have a resume. Okay, just I am showing for a reference. See, I made that resume in 2 pages only. See, okay, in that way I have mentioned. See, that is the only reference. This is the thing. See, here my phone number, my mail ID, my LinkedIn profile with link. Here is my education. Here is my core technical skill. Okay. Then soft skill. Then my personal detail. Achievement also was there. And here, see, you can see my profile summary, short message I told you. Here the work experience. See, one.
company, 2 company, 3 company, 4 company, 5 company. I have 5 companies work experience. Okay, I mentioned that. And then I have mentioned 1, 2, 3, 4, 5 projects, 6 projects. Okay. So it doesn't matter. It depends on you how you manage. Okay. Got it? Uh, okay, sir, got it. But I want to add one more thing, sir. Hmm. Inside your resume, sir, there is a color mention. तो सर मैंने बहुत सारे लोगों से सुना है कि रिज्यूम जो है वो सिंपल होना चाहिए, कलरफुल नहीं होना चाहिए. If you are applying in a development field. Okay. Doesn't matter. See, it is a simple way. It is depends on you. Okay. I assure you it doesn't matter. It is if you can because अगर आप दो, if you are doing into partition, okay, so how you can highlight that partition? If I make it white, so how it look like? Okay, so that's why I use the single color, and only I use the single color. Okay, so you can use single color. Don't make it as a graphically, uh, like बहुत सारे कलर यूज मत करो. जस्ट मेक इट सिंपल. सिंपल मीन्स देखो एक ही कलर यूज किया है. ओके. एंड ओनली सिंगल कलर और सेकंड ग्रे शेड यूज किया. दैट्स इट. ओके. Okay, कर thank you, sir. सकते हैं. Thank ऐसा you. Got ऐसा it, sir. कुछ नहीं Thank है. you. हाँ. ऐसा कुछ नहीं है. आप डिफरेंशिएट कैसे करोगे? सो इट शुड बी सिंगल कलर यू कैन यूज. हेलो 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 सर। यस. हाँ. सर आपने अभी प्रोजेक्ट में रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी डाली। इट्स सपोज हाँ. प्रोजेक्ट में मैंने PWA फिर एंगुलर यूनिवर्सल यूज किया है, तो वो मेंशन नहीं कर सकते क्या? लाइक इंक्रिप्शन डिक्रिप्शन जो भी फंक्शनलिटी Rushikesh, मैंने वो इम्प्लीमेंट किया। Rushikesh, यू कैन whatever मेंशन you have done, एवरीथिंग. right? वट एवर यू डन. Everything you can mention. Let's say PWA is a thing which no one works normally. And if you have worked on it, mention it because that is something new. Okay? And iska it will impact more impactful. For example, we have a JD with you are the only person working with that uh, key skill. Okay, so it will automatically go up, means rank you up. Okay, अगर आप में जो skill mention करी है and that is a core requirement of HR. Okay, तो वो आपको पिकअप करेगा. ओके। Okay, See, तो मैं. overall consider करो कि how SEO works, right? Everyone is related to web technology. How SEO works means whenever you create a website, you have some search keyword description, you put it some word regarding that. If it is a hotel management, hotel website, so we put hotel booking somewhere, best hotel in Nagpur, best hotel in Pune, like that keywords we pick. Consider your resume like that. Whatever your skill set are there, what are the domains you have worked at, everything it should be there, so that your resume get filtered out by the HR. Because that AI tool, whatever the AI tool they might be using, that is just going to parse your resume, what are the keywords you have written. It is going to highlight your resume based on the keyword they are looking. Okay. Yes. And why I'm mention multiple project with different domain, because somehow I have to say, I have to, highlight that thing. For example, here, see, here the domain is finance and banking. If the requirement for banking and finance, so maybe they will pick up my resume. Here I mentioned healthcare. Okay. So that thing also matter, because the project recruiter is looking in every recruiter का जो मतलब व्यू होता है ना, वो अलग वे से होता है. इट डिपेंड्स ऑन द रिक्वायरमेंट. ओके. अगर उन्हें मोस्ट ऑफ द लाइक अ पर्सन हु हैज वर्क विद द बैंकिंग डोमेन, उसकी मोस्ट रिक्वायरमेंट ये है, सो इट विल पिक अप दैट पर्सन. अब 10 एंगुलर पर्सन है, द ओनली पर्सन हु वर्क विद द बैंकिंग. ओके. everyone having the same profile, same everything is same. The only thing, the domain is different and it is related to requirement. So at that time it is the best way they will pick up you. Okay. Here automotive e-commerce also I mentioned. Okay. So that is a different scenario you need to mention in it. Okay. Enterprise solution, see, I mentioned 4 different domain. Got it my point? Why it is यस सर। necessary to mention domain as well? Okay. Sometime we are not mentioning domain as well, right? But we have to. Okay. Hello, Yeah, tell me. hello. Sir, suppose I have 1 or 2 years of experience, okay, Okay. and
can I add my personal project in my resume? Yes, yes, I already told you. Doesn't matter. It is your see. You have a current experience. You can add and previous. Even if you have something like, for example, you create a project, deploy it on GitHub. Okay, showcase Okay. in GitHub and provide the GitHub you link in your resume as well. It will also, I also mentioned that thing in resume as well. If do you have LinkedIn profile, portfolio, and also GitHub account, please mention that URL as well. Okay, it's really help you. Okay, अगर Okay. यहाँ पे शोकेस नहीं कर सकते हो तो पोर्टफोलियो और आप अपने गिटहब अकाउंट में शोकेस कर सकते हो. ओके. Okay. So only just to show that the portfolio and inside it, we have to include that our project links, right? No, it is an optional thing. If do you have, see, most of the UI UX developer they Yeah. wanted portfolio. The Okay. every recruiter asks, do you have a portfolio? Okay. Yeah. So in that scenario, you must have a portfolio. If you have a project only, so you can mention your project. Okay. In your experience as well. As a experience duration, you can mention everything. Yeah. Okay. So and one more question. You Hmm. mentioned the personal details. So it is Hmm. mandatory for the women who are married. So can No, it we is for neglect everyone. it? It is No, it mandatory is for everyone. yes, yes. But see, marriage status is needed. See, most of the company having they are working on the privacy policy. There are different privacy policy as well regarding to uh, जो चीजें चेतन वो उनको क्या बोला जाता है जो चीजें होता है लाइक Sorry, हेलो. what was the question? I was not paying attention. अरे चेतन ते नाही का ते मॅटर्स होतात नाही का काय मेल फिमेल मध्ये नाही का for example the same candidate husband and wife can't work in the same Okay, company. okay, yeah. Okay. Conflict. Okay. Yeah, some kind of thing what Let's not say if we talk happened. about JP Morgan or Bank of Yes, America, if you are working there, na, your wife can't work on in that company yes, also. yes, yes, Some companies will limit it to projects, some company will limit it to whole company also. Okay. yes, yes, So it is mandatory to yes, it add is the a personal mandatory to details. add this thing. Yeah. Also there is a relocation part dependence on like if you are mentioning that your wife is working and if need to relocate, so in that scenario you have to mention that thing. Yeah. Hi Devan. Yes. I have one question actually. Hmm. Suppose a candidate joined one of the company and Hmm. after joined 3 months due to some project issue or lack of project, he left the company. Hmm. Then at the recent project, that means then what he mentioned, he should mention that company name or any project because only the duration is 3 months. Okay, in between, is it required to mention any project? Because once mentioned, then maybe ask after 3 months the company left. So what is the reason in mid project? So that should be required to mention or not. Yeah, you have to mention. See, there is a multiple aspect is there behind it. For example, you not mention, so you have to tell them why you are not working from last past 3 months. Okay, but and if you are working and they are paying you and there is a conflict in EPF, right? Maybe they Yes. are paying you EPF. So every time you have to mention your experience, whatever. I also mention my 5 month experience as well. Okay. So See, doesn't matter. For 3 months also required to mention. Yes, yes, yeah, yes. if your PF is deducted, na, Yes, somehow it So is yes. going you, to Yeah, they are for going to know it. Yeah, for me yes, happens actually. I joined in Wells for Senicron. Due to some project issue, like a project, I did not get in any project. Then I left the company. Left means it is sometimes a separation issue. So then I should be mentioned that the Senicron show my profile and my Yeah, each yeah, and that's what I everything. said. yes, If yes, yes. PF is deducted, na, Yes, you have to deducted. mention it. You have to mention it Don't because hide you that. cannot justify that thing, right? That And even there, big there. MNCs will check the PF record also Yes, yes. in Hmm. background verification. Yeah, there I should mention the project also because that time maybe No need to K3 was mention running. project. No, No no, need to mention doesn't project. matter. If you have work with, Yes. then if you don't have, so mention you can mention directly. I work with, I don't have project. That's why I left the job.
in simple way you can answer it. Okay, Okay. don't Hi, make it Devin. complex. Yeah. Like based upon the CV, like how to create a cover letter. Some recruiters also asking cover letter. Yeah. So cover letter, in basically cover letter, you have to mention only one thing, the professional summary. Okay. Add a professional summary and just end up with some like a professional summary. And I will figure it out a proper. I had, but I cannot show it because it is in different system. So I will show you in tomorrow calls. Okay, what is cover letter? In cover letter, we only write a professional summary, and that's it only. Yeah, okay. Like how to check the ATS score of CV. Yeah, it Just is a. Google it. Some websites are there which will help you out. As I mentioned, now it won't provide the Mhm. whole thing, but at least score you will get to know. Tomorrow I will show you if possible. Na, I have some. So tomorrow I will show you what exactly and how to do that. Okay. Hi there. Re, re, Yeah. resume Just worded is just there. 1 minute, just 1 minute. Just wanted to explain, like tomorrow in morning 10 a.m. we are going to have one more session for React. So one my friend is there, Sagar Sarde. He's working in T System. He's having 10 years of experience. He's going to do a React session. So those who want to just start with React, he's going to take a base from basic to and try to complete a basic application. Okay. I will post the message also in the group. Yeah. Sorry. Go ahead, Yeah. Remining. Hi, Devin. Yes. Aditi this side. Sir, I have some two small doubts. Is it important that we modify our header, like professional profile summary, according to the job description every time? No need to do that. Just make a standard. Just follow the standard only. Okay, don't need to see if for example you are you are expertise in Angular. Okay, your profile into Angular. So as an Angular developer, you have to just mention once at a time, just for the multiple. If you are build the resume first time, okay, you have to verify, cross check. The only thing we can match check with multiple job description, just cross check with that, and just fill that thing with or replace that thing with your like a professional summary at once only. Okay, and after that you don't need to do nothing. Okay. All right, sir. And Yeah. the second question is sometimes there are if for example if you go for SCSS or Tailwind Mm-hmm. spaces, so these Mm-hmm. are like very common things I have seen in Yes. job descriptions, right? That Yes. I personally haven't worked on it. So Mm-hmm. shall I mention them or shall I not? Like if something like this comes, uh, Yes. Yeah, sure. See, if you are the front end developer and you are the working with the Angular, so you must have knowledge about it at least. And you have to mention it because see, whatever, if you can see that JD, show that JD. In every JD, CSS, HTML, CSS is a common thing, right? See, HTML, CSS, it is a common. The vacancy it is for senior UI developer, the common thing, but you have to mention this thing. Get some knowledge as an interview perspective, so it will help you. Like some, it will ask you mostly in 3 or 4 questions regarding HTML and CSS, HTML and CSS. But most important question they will ask you. So it should be in your resume. Okay, so whatever there are related to your technology, to it tech, should be there. Yes. even if we are not worked on it properly. Right. See, you are not work with cross browser compatibility, not work with accessibility, right? But the HTML is there, right? You know about HTML, right? Yeah. Yes. But HTML, in HTML we have accessibility part, okay, right? But we should know about that. So it should be there. Okay, sir. Yeah, got your point. Thank you so much. Okay. Thank you. या हाय देवेंद्र. Hi. Hello. Hi. या हाय देवेंद्र, एक्चुअली मैं ये पूछना चाह रहा था, जैसे मुझे 5.9 ईयर का एक्सपीरियंस है Hmm. डॉट नेट विद एंगुलर का.
ठीक है, तो हम्म अभी इस समय मैंने मोर देन 200 इंटरव्यू दिए, बट आई एम नॉट गेट एनी गुड अपॉर्चुनिटी फ्रॉम दैट साइड. हम्म Okay, and I'm not sure what happening into this industry. Okay, ओके because mostly I got a rejection from that side. Okay, ओके but my resume is almost a shortlist from perspective HR and company sides. Okay, but हम्म I'm not sure what happening from my side. Other I'm satisfied with the HR हम्म on and interviewer. I'm not sure. Okay, so ओके मैं ये कहना चाह रहा कि क्या मुझे अभी मैंने 200 इंटरव्यू दे दिए हैं, मुझे अभी कोई हम्म अपॉर्चुनिटी नहीं मिली है, तो क्या मैं हम्म अपनी प्रोफाइल चेंज कर सकता हूँ? Profile, see, I did the same thing, but it depends on you. Profile change करना I can't, मतलब क्योंकि ये नो नो आपका प्रोफाइल का मतलब कि ये है कि मैं एंगुलर पे देख रहा हूँ, ठीक है, मतलब सॉरी, एंगुलर और डॉट नेट पे डॉट नेट पे प्रॉपर मैंने काम किया है, एंगुलर पे मैंने काम काम किया है, ठीक है. हम्म उसके बाद भी इंटरव्यू में क्वेश्चन उठता है कि हैव यू नॉलेज इन रिएक्ट. ओके ओके. सी मनेंद्र, हाँ. हाँ हाँ हो सकता है कि तुम जैसे बोल रहे हो ना कि तुमने बहुत सारे इंटरव्यू दिए लेकिन हाँ. कन्वर्ट नहीं हो रहे. होता हाँ. क्या हाँ. है, हाँ. बट अपन सो हम फुल सो आई थिंक. कॉन्फिडेंस में कभी कभी रॉन्ग आंसर देते हाँ. हैं. हाँ. किसी ना किसी दोस्त के साथ एक बार इंटरव्यू करके देखो मॉक. ओके. ओके. गॉट इट. बहुत बार होता है ये, तुम्हारे साथ नहीं सबके साथ होता है कि हम नहीं नहीं, हमको लगता है कि हमने इसीलिए मैं आंसर दिए. इसीलिए मैं सजेस्ट डोंट एज अ वरी सजेशन. आई विल शो यू वन थिंग सी मैंने जो रिज्यूमे आपको दिखाया था ब्लू कलर का राइट ओके. सो मेनी पीपल हैविंग डाउट्स कि ये रिज्यूमे से कैसे शॉर्टलिस्ट हुआ सो आई विल शो यू समथिंग ओके आई स्टार्टेड सर्चिंग job from the Feb. Okay. See, ओके. I have an interview with Jensar. Okay. ओके. I have an interview with the Globant. I have a three interview the same day. Okay. ओके. With the same resume. अब ये डोंट मतलब आप ये मत बोलना कि आप देखो ये है एल LTI माइंड ट्री ठीक है ओके. देन आई हैव ग्लोबल लॉजिक okay then round one JavaScript it is with okay it is global ग्लोबल logic लॉजिक. second round maybe yeah it is second round या आई नो then एक्चुअली so मोस्टली as टू हाँ थ्री राउंड तक तो हो सकता है, ठीक है. अभी मैं पिछले फ्राइडे को इंटरव्यू दे के आया था, तो 2 राउंड के बाद उन्होंने मेरा रिजेक्शन कर दिया क्योंकि बोले थे हमारे पास बजट नहीं है. तो ये थोड़ा-सा डिमोटिवेट का ऑप्शन बन जाता है वहाँ पर. no नहीं देखो it is मनिंदर, अभी हाँ. हो कैसे रहा है ना, जब आपका आपका एक्सपीरियंस कितने साल का है? 5.9. 5.9 के लिए क्या बजट देख रहे हो? या एक्चुअली मैंने 15 बोला 15 एलपीए. नहीं, 15 तो मिलना चाहिए. बहुत नॉर्मल है ये. yeah normal है और it is a उससे normal पहले वो भी कंपनी स्मॉल होगी तुम्हारी. उससे पहले भी मैंने एक इंटरव्यू दिया था, तो उसमें भी मेरा हो गया था, बट जो कमोडेशन लेटर वो भी मिल गया था. उसके बाद एक मैनेजमेंट की साइड से उन्होंने एक मीटिंग रखी थी, तो हम्म उसमें मैंने क्या था, उनका रिक्वायरमेंट था एज अ सीनियर सॉफ्टवेयर डेवलपर. ओके, हम्म ओनली फॉर दैट. हम्म बट मैंने एज अ इंट्रोडक्शन के मैंने बोल दिया था कि मुझे एंगुलर और उसमें दोनों पे कमांड है, मतलब दोनों हम्म पे काम कर रखा है. तो उन्होंने हम्म. उसी टाइम बोल रखा कि हमको केवल प्योरली बंदा डॉट नेट पे चाहिए, नहीं तो तो दिस इज वो नॉट अ गुड बिहेवियर. वही तो, कि जब यही भी अपन चीज है इंटरव्यू देते हैं ना तो पहले हाँ. पोजीशन रिक्वायरमेंट क्या है ये याद रखो, क्योंकि अपना एक वर्ड भी आगे वाले का माइंड चेंज करता है. क्योंकि ओके जब आप बोलते हो ना कि मेरे को डॉट नेट भी अच्छा था, एंगुलर, पॉसिबल ही नहीं है. किसी को दो लैंग्वेज उतनी अच्छी आ ही नहीं सकती. अगर उनको सिर्फ फ्रंट एंड वाला ही चाहिए तो दूसरा ऑप्शन अगर अवेलेबल है ना तो वो उसके साथ जाएंगे. ओके. ओके आई विल गिव यू वन एक्चुअली सजेशन एक्चुअली मैं इसीलिए आया था. मैंने सोचा एक बार आपसे सजेशन ले लूं कि आई आप गिव क्या. यू वन सजेशन बेस्ट सजेशन ओके. ओके. हाँ. okay do one thing make two resume one is for the purely in .NET sector one with the angular with .NET okay ओके. गॉट इट. okay and just apply accordingly okay so it will help you as per and also make two introduction it is for the I did same thing I follow the same thing see I'm moving I just like मैंने Salesforce में switch किया right career को so at that time I am not showing as an UI UX I am not showing as a UI I'm not showing Angular. I'm only showing JavaScript, HTML, CSS, Bootstrap thing because those are related to things. And don't tell the interviewer if you are looking into both things. Okay, if the requirement is looking for the .NET, so only
explain then .NET only. If the requirement is Angular only, so focus on Angular only. And it is regarding the backend with front end, so explain the both thing. यही चीज आपके साथ हो रही है. हाँ जी, मैं बिल्कुल सही। I have given interview in all domain. I will show you in UI UX as well. Okay. So I will show you UI UX. So at that time I was selected for UI UX. So I will given the interview for UI UX only. Okay. So एक दिन में मेरे दो दो तीन तीन इंटरव्यू होते थे, लाइक कैप जेमिनी. तो मोस्ट ऑफ दी ऐसे ही UI UX का. एक मिनट, आई विल शो यू UI UX एज वेल. But in Naukri.com and other portal, we can only for one resume uploaded, na? No. So how to Doesn't possible for matter. See, I have two accounts. Okay, I have two email ID. I have two account. Okay, one is for the Salesforce only, and second is for the Angular only. You have to be a smart guy, right? We are doing job hunting. It is not easy. आपको जितना इजी लगता है उतना इजी नहीं है. अगर आप मल्टीपल डोमेन में हैं तो आपको इतना थोड़ा तो स्मार्ट बनना पड़ेगा कि जैसे मैं दो ईमेल आईडी आपको, मैं दोनों ईमेल आईडी के आपको ये दिखा दूंगा. मेरे जो कैलेंडर है ना, इसमें आप देखोगे every month I am giving more than 20 to 30 interview. See, if you can see my panel, see UI UX. Okay, I'm getting a call UI UX as well, right? Okay, Cognizant, Emphasis, most of the MNC, and I have I shortlisted for 3 companies. Yeah, I actually, show you. in 2022, I got a 4 opportunity, 4 offer letter. But right now, what happening in IT sector, I don't know. What happening from my side and what happening See, from that nothing side. happening in IT sector. We need to update as per the requirement. See, the virtues are आपके I हिसाब joined as a yes. सर Tell आपके me. हिसाब से अभी मार्केट कैसा चल रहा है? जैसे आपको अभी मोर देन 7 इयर्स का एक्सपीरियंस है, आपके हिसाब से 2 साल के एक्सपीरियंस के बंदे क्या करना चाहिए? क्योंकि कैसा है, उसको कॉल नहीं मिल रहा है अभी, कितना भी वो हम्म अपने इंटरव्यू को प्रिपेयर कर रहा है या फिर कॉल नहीं मिल रहा है, ठीक है? तो हम्म आपके हिसाब से अभी मार्केट कैसा है कि उसको क्या करना चाहिए? लाइक अगर आप एंगुलर को जाते हो तो सामने वाला रिएक्ट के बारे में पूछता है, आपको हम्म बैकएंड का भी नॉलेज चाहिए, आपको हम्म एडब्ल्यूएस का भी नॉलेज चाहिए, राइट? right. हाँ, आपको Sir, अभी it's हम डिप्लॉयमेंट भी similar आना for the चाहिए. three. अभी You have to अच्छा, be flexible. अभी ऐसा नहीं है कि कोई पहले था 2-3 साल पहले कि अपने एंगुलर सीख लिया वो बहुत बड़ी बात थी. ओके, या आपने डॉटनेट कर लिया, दैट वाज अ बिग थिंग. बट सिंस Same thing एआई है. इज देयर ना, टेक्नोलॉजी हम्म, डजंट मैटर ऐसा हो गया है. तो बट With the help of एंगुलर सिर्फ AI, you एंगुलर के can लिए. within 1 week you can learn any technology. That is company's assumption now. कि कंपनी ओके, मतलब ऐसा डेवलपर ढूंढ रही है जिसको एंगुलर भी आए, रिएक्ट भी आए, नेक्स्ट जेएस भी आए. गेटिंग इट? ओके, सो हमें अपने ओके. ऑप्शंस स्प्रेड आउट करने हैं. वो पहले था कि हमने एंगुलर सीख लिया हो गया, अभी दूसरा नहीं सीखते. अभी वैसा सोच के नहीं कर सकते अभी. Yeah, गेटिंग इट? exactly, Chetanji. What happens in Senicron, I joined as an Angular developer. Once joined, then internally again re-interviews happened for the clients. But जो भी मैंने 3-4-5 clients से इंटरव्यू दिया तो सारों ने पूछा है only Angular is not enough for us. राइट. Also we have to update .NET or Right. Java or MySQL also. So my manager also told me, Niranjan, only Angular is not getting such a position. So, if you have some other API sites also. राइट. Yeah, So right. and That's what Actually, I'm saying उनको from so many days. उनको so At एंगुलर least में a backend language. exactly. एंगुलर में जावास्क्रिप्ट भी चाहिए, टाइपस्क्रिप्ट चाहिए और हाँ, सब बैकएंड में कुछ चाहिए, jQuery भी चाहिए. सब कुछ तो चाहिए. यही हो रहा है इस समय. और सेकेंडली व्हाट हैपेंस, मेरे को इंटरव्यू लेने के लिए दिया गया था, मैं लिया 2-3 महीने था वहाँ पे इंटरव्यू में. वो डॉटनेट विथ एंगुलर का है उनका पोजीशन. बट मेरे को बोले कि आपने एंगुलर का इंटरव्यू लो. व्हेन आई वाज टेकिंग इंटरव्यू, मैं उनको बोला जब जब डॉटनेट विथ एंगुलर दे आर प्राइम सब्जेक्ट इज डॉटनेट, तो व्हाई शुड यू डोंट टेक द एंगुलर फर्स्ट, डॉटनेट फर्स्ट इंटरव्यू. if it clear, then you move to the Angular, because Right. the prime subject is .NET na. Hmm. So they told कि no, client is giving more focus on Angular. तो Hmm. गॉड, मैं जब इंटरव्यू लिया .NET का भी बंदे थे, वो उस हिसाब से इतना नॉलेज नहीं था जितना उनको .NET का है. नहीं होता है वही. तो लोग फिर मैंने लिमिटेड क्या है, किया, अभी भी लोग लिमिटेड है.
मैंने See, क्या किया, 5-6 रिजेक्ट करने के बाद 2-3 को मैंने बोला कि नहीं बहुत सारे थे, मैं पास कर दिया। पास करने के बाद क्लाइंट के पास इंटरव्यू जब गया, वहां से उन्होंने रिजेक्ट कर दिया, क्लाइंट वही बोला होता कि है, इसलिए तो मैं फिर मेरे कंपनी में भी अभी इंटरव्यू नहीं लेता हूँ, मेरे को क्योंकि 10 साल मैनेजर का भी रहे ना तो भी लोग आंसर नहीं दे पाते। मैं पास भी करूंगा, आगे जाके वो रिजेक्ट ही होता है, मेरे तो को मैंने बंद मैनेजर कर बोला दिया कि लेना अभी। निरंजन ऐसे मत करना बोल के, फिर मेरा बंद हो गया कैंसिल लेना, क्योंकि see, वही I होता है। told you one more thing. See, here I got the offer. See, what is it? UI front end and Salesforce. They are considering you two technology. UI भी चाहिए, front end भी चाहिए, Salesforce भी चाहिए. Here second offer I got from Accenture, and here I Angular developer, and here also I got from Angular developer. Okay. सो आपकी जो प्रोफाइल और जो इश्यू है ना, आप अगर मल्टीपल टेक्नोलॉजी में इधर गुड थिंग, बट आपको वो प्रेजेंट करना जरूरी है, कैसे करना है वो आप पे डिपेंड है। ओके, अगर आप उसको प्रॉपर तरीके से प्रेजेंट करोगे सो इट विल हेल्प यू, अदरवाइज एंड देर इज अ मल्टीपल थिंग जो वी विल डिस्कस इन टुमारो सेशन, in like how to write a mail and how we can check the Naukri portal and all. So that thing we will discuss in tomorrow session. And also we, Devin, yeah, Devin sir, I just had one question. See, I yeah, was working as a full stack .NET developer for okay. the last 3 years. हम्म एंड सो क्या है ना, मतलब जैसे कि नॉर्मल अपॉर्चुनिटी आता है तो हम्म उसमें कभी आता है फ्रंट एंड डेवलपर का रिक्वायरमेंट है या बैक एंड डेवलपर का रिक्वायरमेंट है, तो मुझे अपना फुल स्टैक वाला रेज्यूमे ही लगाना चाहिए, या मतलब यानी कि एक दो रेज्यूमे और प्रिपेयर करो जिसमें आप अपने फ्रंट एंड को ज्यादा हाईलाइट कर रहे हो, फिर आप अपने बैकएंड को ज्यादा हाईलाइट कर रहे हो, तो ऐसा करना चाहिए, मतलब ऐसा करना चाहिए या फुल स्टैक रेज्यूमे को no, ही मुझे mention every करना time चाहिए? you have you know at least two resume, मैं प्रेफर करता हूँ, आई ओके। आई एम प्रेफरिंग फर्स्ट थिंग, देखो एज पर द रिक्वायरमेंट आप वो रिज्यूमे यूज करो, राइट? फॉर एग्जांपल समटाइम HR आस्क यू, you don't have experience in this and this actually we are looking for, but you have that experience but you don't mention this in resume, right? ओके। So most of the time, if you have a full stack as in full stack, so make a resume full stack for it. And if you have additional technical skills, so make a different resume. I prepared a two resume, so you can also prepare a नहीं, मैं two resume. एडिशनल के से बात नहीं कर रहा था, मैं ये बोल रहा था जैसे कुछ कुछ जैसे Naukri.com में आता है रिक्वायरमेंट फॉर द फ्रंट एंड डेवलपर, हम्म वो लोग स्पेसिफिकली फ्रंट एंड डेवलपर पे फोकस करते हैं, तो तो उसके लिए वो अलग से सिनारियो रेज्यूम में बनाना चाहिए ना ना या ना फुल उस स्टैक वाला सिनारियो लगाना में चाहिए? आप है ना एक ओके। मल्टीपल टेक्नोलॉजी ऐड ऑन कर लो। मल्टीपल ओके। टेक्नोलॉजी कैसे होता है ना, फॉर एग्जांपल सी व्हाट आई डिड, UI UX एंड Salesforce LWC डेवलपर। आप यहाँ पे फ्रंट एंड बैक एंड फुल स्टैक ऐसा लिख के कर सकते हो, फ्रंट एंड एंड बैक एंड डेवलपर ऐसा लिख के ये चीज़ें आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हो। यहाँ पे ना मेंशन करके आप इसको ऐसे भी मेंशन कर सकते हो, लाइक सी आई मेंशन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, UI development, front end development, Salesforce LWC developer, Salesforce SLDS software developer. Got it? Yeah, yeah. Hi, ओके। Devendra. ओके। I share एंड some. सर, वन मोर थिंग इज देयर, एक चीज और Yes, लास्ट पूछना था मुझे कि yes, yes. लाइक 3 years ऑफ एक्सपीरियंस के बंदे को कितना पैकेज ऑलमोस्ट लाइक देवर आस्किंग फॉर, मतलब यानी कि कितना पैकेज का आपका रिक्वायरमेंट है, कितना पैकेज आप डिमांड करें, तो उसके लिए मतलब क्या रहना चाहिए 3 years वालों के लिए? See, it depends on the requirement. ये आपका वो कैसा है, डिपेंड करता है ना। आप अगर मांगोगे ना तो आपको 15-20 भी मिल सकता है, बट अगर उनका बजट उतना नहीं है तो वो उतना पे नहीं करेंगे। ओके, सो डिपेंड्स ऑन आपका ओके। करंट पैकेज कितना है। फॉर एग्जांपल आपका अगर करंट सैलरी नियर अबाउट 6-7 के आसपास है तो दे विल गिव यू मोर देन 50-60% हाइक करंट सैलरी पे। ओके, और अगर ओके। आपका पहले से ही तीन तीन के आसपास पैकेज है तो आपको 100% मोर देन दैट भी मिल सकता है। और अगर आपके पास आप सिलेक्टेड, यू आर सिलेक्टेड एंड यू आर, आपको वो आप एज अ कैंडिडेट आप बहुत अच्छे लगे, आप ही चाहिए वो प्रोजेक्ट में, सो दे कैन ओके। इंक्रीज देयर बजट एज वेल। ओके, ये डिपेंड करता है। ओके, इस पे कोई कुछ कमेंट, और टेक्नोलॉजी वाइज भी वैरी होता है, लाइक इन सेल्सफोर्स एज अ फ्रेशर
15 का पैकेज मिलता है, आपने सुना होगा 15-16, इट इज अ कॉमन, ओके, एज अ ओके सेल्स फोर्स, ओके। तो टेक्नोलॉजी वाइज भी डिपेंड करता है। ओके Devin, चलिए ठीक है थैंक technology यू hello there. technology यस का यस तो बहुत चेतन सर, ज़्यादा change रिज्यूमे में अगर ओनली गैप है तो कैसा हेलो, शो करना है रिज्यूमे गैप है, गैप शो करो, डजेंट मैटर, बस एक वैलिड रीजन के साथ में, राइट। आई हैव 9 month gap, okay, so don't worry and don't take it as a too much seriously, because what happen ना, sometimes some people are मतलब आपको डरा देते हैं यार, इतना बड़ा गैप है कैसा है, even HR also ये asks you question, I faced some actually. I okay, so experienced. Hello. prepare a proper see, I have a valid reason, because my father is not feeling well, they are hospitalized for the month, okay, and I am not mentally prepared for doing a job. So at that time I left the job. I focus on my father, like his health issue. Then he recovered. Then I started for searching a job. Okay. तो ऐसे कुछ सिनारियो, बट सम सिनारियो में ये वैलिडी आपको वो एक्सप्लेन करना पड़ेगा, ओके, डजेंट मैटर, गैप है, हाँ कर लीजिए हाँ बट उसको तो प्रॉपर तरीके से मेंशन करो, ओके। अगर एचआर ने पूछा उस समय आपने क्या किया है तो क्या बताना है मतलब मेरे को बताइए, आपके पापा बीमार है हॉस्पिटल में, आप क्या करोगे, नहीं 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 राइट। कुछ नहीं सो हम्म दे विल कंसिडर यू, ओके। और उसी चीज में उधर देन, और ये चीज को आपको उनको ऐसे मैनिपुलेट भी करना है कि देन नाउ एवरीथिंग इज फाइन, एंड नाउ आई एम फोकसिंग ऑन माय करियर, आई हैव डूइंग दिस, देन उसके साथ में आपको प्रोसीड करना है, ओके ठीक है। थैंक सर हेलो Yeah. आई हैव Hi, Devin. क्वेश्चन फॉर I'm चेतन audible? सर. हेलो हेलो यस। तर एक क्वेश्चन होतं माझं. हम्म एक हम्म 3 वर्षाचा एक्सपिरियन्स आहे सर माझं टोटल. हम्म एक हम्म स्टार्टअप कंपनी, हम्म मल्टिपल टेक्नॉलॉजीवर काम केले. स्टार्टअप हम्म कंपनी म्हणजे इथं माझा पी एफ पण डिडक्ट होत नाही, पण हम्म इथं मी जवळपास 11-12 प्रोजेक्ट केले. हम्म त्यामध्ये रिॲक्ट आहे, अँगुलर आहे, व्ह्यू जी एस आहे, नोड हम्म जी एस आहे, म्हणजे असे वेगवेगळ्या टेक्नॉलॉजीवर काम केलं. तर मला हम्म आता इथून पुढं आता मी स्विच करायचं बघतोय, तर आता हम्म. काय प्रॉब्लेम येईल का? कारण की पी एफ अकाउंट माझं नाही. नाही नाही, काही प्रॉब्लेम नाही होत, फक्त तुमच्याकडे सॅलरी स्लिप मागा त्यांना, सॅलरी स्लिप आहे सॅलरी स्लिप. जॉईनिंग लेटर, प्रॉपर जॉईनिंग लेटर, ऑफर लेटर, रिलिव्हिंग लेटर, या गोष्टी ठेवा सोबत. आणि जेव्हा इफ वी डोंट हॅव लाईक पी एफ अकाउंट ना, सो मेंटेन युअर बँक स्टेटमेंट, ओके. दे विल आस्क यू 3 years और मोर देन दैट बैंक स्टेटमेंट, ओके। सो इफ मतलब आप कोई ऐसा कुछ नहीं कर रहे हो, तो एटलीस्ट आपको वो चीज़ें आप शोकेस कर सके हो, लाइक बैंक स्टेटमेंट से वो एग्री हो जाएंगे, डजेंट मैटर, इट इज, ओके थँक्स. या। हॅलो सर, जर सपोज मल्टिपल टेक्नॉलॉजीवर काम केलं असेल तर सगळ्या गोष्टी मेन्शन करायच्या का रिझ्युमे मध्ये? सपोज सपोज सपोर्ट जरी दिला एखाद्या छोट्या गोष्टीचा तरी तेही मेन्शन करायचं का? See, it depends on the technology. Like, see, I am working with that technology. It is dependent to each other. Like, see, front end LWC, Salesforce, it is also front end technology. Angular is a front end technology. UI, it is kind of front end, right? So it is similar to that. So you can, for example, अगर आप deployment में आपको अगर deployment भी आता है, right? तो आप वो भी हाँ मेंशन कर सकते हो. डे ऑप्स वगैरह आता है वगैरह, वो चीजें किया है तो मेंशन, यू कैन डू दैट, ओके। ये तो ऑल्सो इम्पैक्ट पड़ेगा, अच्छा इम्पैक्ट पड़ेगा, ओके, हमारी कंपनी में क्लासिक एएसपी वगैरह की भी बहुत पुरानी एप्लीकेशन है तो ओके। उसको भी क्लासिक सपोर्ट एएसपी किया है, है। ओके। क्लासिक एएसपी वीबी डॉट नेट प्योर हाँ हाँ, गॉट इट एएसपी गॉट डॉट इट, नेट एमवीसी, वो यू भी, ऑल्सो वर्क हाँ विद यस एमवीसी, राइट? यस यस, Yes. तो वो And भी the मेंशन करना चाहिए रिज्यूमे में yes, मतलब? you have to. See, ओके I already told you, every time, every project I mention with the different key skill, right? With the different domain. Why? Just because my resume should be selected in anyhow, okay? So वो चीज ओके आप हर प्रोजेक्ट में मेंशन करो, बट ये चीजें जरूर मेंशन करना है कि हर प्रोजेक्ट में आप सेम सेम चीजें ना मेंशन करो, गॉट इट? ओके ओके, तो देखो पूरा एसके विद, प्रोजेक्ट का भी अंडरस्टैंडिंग चाहिए ना? राइट राइट, उसका कोड थोड़ा किया सा है तो एक, पूरा, हाँ हाँ, उसका बेसिक अंडरस्टैंडिंग इतना होना चाहिए कि वो डोमेन कौन सा है, एंड हाउ फ्लो क्या है, स्ट्रक्चर फ्लो कैसा है, ओके। ओके तो वो होना चाहिए। जस्ट लास्ट 2-3 क्वेश्चन वी विल टेक,
then we will सर wrap up. मेरा क्वेश्चन हाय सर चेतन सर के लिए है। हेलो चेतन सर। Chetan sir, I think Chetan sir is not there. सर मेरा लास्ट क्वेश्चन ये था कि सर रिज्यूम जो सेव करते हैं फाइनल तो Hmm. Hmm. Hello, you are not audible. Right. हाँ सर आप Question. हेलो हाँ चेतन सर। Yeah. सर जो मैंने बताया आपको कि ये ऐसा सिनारियो चल रहा है कि मार्केट में अगर एंगुलर के इस पे जाते हैं तो रिएक्ट भी पूछ रहे हैं, वो एडब्ल्यूएस भी पूछ रहे हैं, तो सर हाउ कैन वी ट्रैक, मतलब इस सबको कैसा मैनेज करना चाहिए अभी? आप थोड़ा कुछ बता सकते हैं इसके लिए? अगर आप एंगुलर डेवलपर हो तो डायरेक्टली क्लाउड तो सीख नहीं सकोगे, बट अगर आप एंगुलर डेवलपर हो हाँ। तो आप रिएक्ट सीख सकते हो, नेक्स्ट जेएस यस। सीख सकते हो, ओके। रिलेटेड टेक्नोलॉजी एटलीस्ट सीख लो ना, उतने तो चांसेस बढ़ेंगे। हाँ करेक्ट, और एकदम बैकएंड डायरेक्टली के डॉट नेट या फिर जावा तो नहीं कर सकते हो। हाँ सही। और वो बैकएंड वगैरह भी नहीं बोले कि अगर वो बैकएंड बोलते हैं तो फिर अगर डॉट नेट नोड थोड़ा सा जेएस कर अगर सकते एक्सपीरियंस भी हो, कर सकते डॉट नेट ईजी है सीखने के लिए, कम टाइम में हो सकता है, बट जावा मत चूज करना, जावा कम टाइम में होता नहीं है और सबके बस की बात भी नहीं है जावा। राइट, डॉट नेट हैं। थोड़ा और सा सर इजी कर सकते नोड जेएस और एक्सप्रेस के बारे में क्या बोल सकते हो। हैं हाँ, सर? वो भी कर सकते हो, या फिर अगर डॉट नेट में नहीं जाना है बिकॉज यू नो जावास्क्रिप्ट, तो नोड जेएस, मोंगोडीबी, एक्सप्रेस जेएस ये कॉम्बिनेशन करो, दैट इज ऑल्सो फाइन। ओके ओके ओके। तो मतलब ये फुल स्टैक कर सर सकते आप हैं अगर हाँ, ये फुल स्टैक हो जाएगा ना, आप एपीआई ये डॉट नेट में बनाओ, नोड पे बनाओ फुल स्टैक। ओके सर, थैंक यू। फाइन। Anyone having any question, because it's almost more Uh, than time. so I have a question. Yeah, quickly. Yeah, so Chetan, I'm currently from last 1.5 years working as a Sitecore.NET developer. Mhm. So now अब मेरी कंपनी कह रही है कि now they are shifting me to a React Native project. Okay, React Native. So yeah, that is a totally different domain. So I'm Sorry? confused whether I should go with that or not. See, you don't have any option. You have to learn it and work it. If you are very much uncomfortable, try looking out for a job, right? But till then, work on the React Native or whatever they ask you to do, and ask them the proper time. You can say like, I'm doing this for the first time, so I'll be needing some time to learn and implement. Okay. Yeah. So that is a project स्क्रैच से चलेगा वो हमारा। Sorry, voice. वो स्टार्टिंग से हमारा बिल्ड होगा प्रोजेक्ट। Yeah, if it is from the starting, na, you get time to learn. Yeah. Right. Okay. If it is an existing project, na, it is hard to manage. But if it is starting from basic, na, you should learn. Yeah. Nothing is going to waste. Okay? Yeah, I think that's a good opportunity for you. Yes. Yeah. So Devendra, actually, I'm last time. Actually, I'm Yes, saying. yes. So after selection, can I move into this, right? Into other profile, just like the sales and other things, right? So that's a good for me. After selection means I'm Yeah. not getting. Yeah, actually, I'm saying actually before this conversation, I decided first I need to change. After that, I will search a job. But I think this is not good for me because I have no opportunity right now. So first No, I actually opportunity was there, but we are not in a hunting in proper manner. Job hunting is it not a normal job? See, I'm giving more than 20 interviews every month. Okay, yeah, yeah. so just because of a proper hunting, I'm getting the call and interview schedule. Okay, Okay. so you can do that way. You give your best. Give some time for preparation as well, some presentation as well, or introduction as well. Depend on your introduction, your resume, everything matter. Okay, a small mistake you will be rejected. Okay, Got it. so Actually, focus I on that thing. Yeah. actually first I focus on a role, just like a profile role on that. Yes. Uh, First thing you have to concept, focus on your technology. technology, concept Like technology for पे example, yes, आपको कौन से डोमेन में जाना है और कौन से टेक्नोलॉजी। देन आफ्टर दैट, उसके बाद बाकी चीजें पे आपको कुछ नहीं करना है। देन आपको उसके रिगार्डिंग रिज्यूमे बनाना है, Naukri.com पे अपलोड करना है, लिंक्डइन पे अपलोड करना है,
देन यू हैव टू जस्ट हंटिंग लाइक कैसे करना है वो बाकी चीज़ें हम नेक्स्ट सेशन में देखेंगे कि जॉब हंटिंग एक्चुअली होता क्या है और naukri.com पे और लिंक्डइन पे कैसे करते हैं. या इफ यू सर कैन अभी ये यस टेल मी. अप्रैल के बाद में अभी जॉब ऑप्शन बढ़ जाती है क्या सर अप्रैल के बाद? ऐसा कुछ नहीं डिपेंड्स करता है. अप्रैल के तो बाद साल नहीं भर बढ़ती रहती है है. ना? अप्रैल के बाद नहीं. नहीं नहीं मार्केट वार्केट कुछ नहीं है ये सब बनी बनाए बातें हैं. आई कैन शो हाँ यू मेरे इसमें देखना अप्रैल में सब में कॉल ज़्यादा है. ठीक है. मेरे 6 महीने का पूरा मेरे पास ये है. मैंने भी 200 से ज़्यादा इंटरव्यू दिए हैं. देन आई गॉट 3 ऑफर. सो एवरी मंथ आई एम गेटिंग एटलीस्ट 20 इंटरव्यू. ओके ओके सर. Yeah, सो यू actually, कैन. या I today I got a call from IGT. So ओके. HR told me, Mahendra, I'm not a proceed your profile because you have almost a 6 month gap. So I'm surprised that this is happening in companies or not. Actually, I'm not getting this things. क्या हो See, रहा है it's मतलब? totally depend on your script. Okay. Okay, Whenever okay. I got the call na, see, I have Uh-huh. 9 month gap. I told you, No, right? no, no, 6 months. No, no. I am telling about me. I have 9 month gap Okay. before. Okay. So at that every time when I got the call from HR na, so I telling them why there is a gap. Okay. So I tell the what happened with me. I directly tell with them. Okay. So Okay. sometimes they consider, sometimes they may be not. Okay. So ignore that thing. Okay. Yeah. Don't take it seriously. Okay. 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 एक्चुअली Thank एक्चुअली क्या होता है जब रिक्वायरमेंट आती है ना तो गैप है कुछ नहीं देखते हैं इंटरव्यू लेते हैं सेटिस्फाई हुए ले लेते हैं जब थोड़ा सा प्रॉब्लम होती है तब ये सारी चीज आती है मेरे साथ भी हुआ था गैप में मैटर नहीं करता इसलिए मेरा एक फ्रेंड 1 ईयर गैप में जॉब पाया सैनिक में तो गैप इज नॉट दैट मच मैटर एक्चुअली रिकॉर्डिंग Doesn't matter. हाँ I got 3 offer, one from Virtusa, one from Deloitte, one from Accenture. I show you that mail, right? यस That is after the 9 month you. gap. And also I cleared some interview from other company as well, but I'm not mention that company. Doesn't matter. Also I work with the one company having only five. I work with only 5 months. Okay, Okay. Devin, then yeah, Devin, one last question. yes, Devin, actually मैं अभी full stack developer हूँ okay. और मेरा previous experience Angular था, but currently अभी जिस client पे मैं काम कर रहा हूँ वो Angular उस पे नहीं है, and Hmm. I'm trying to switch to next job. Hmm. So when I get a call from the HR, so Hmm. HR do you have experience in Angular? So I explained that previous the company I was having the experience, but they are not considering that experience for that. They are saying you have a gap of 1.5 years in Angular, so we are not considering. So how Don't to tell them now. tackle it? See, mostly I told you proper. There is a proper script. I made multiple script for every question. It when happen when you got the question, maybe you have to find out the solution for it as well. Okay. So sometime I think you got the question right. So this kind of question, if you have in next technology and they are asking for Angular and it is gap issue, okay. So make a script like that. So I work with the Angular only, okay. Don't tell them I have a gap. Don't tell. Make it a simple script, simple and sober script. So that Okay. will be help But you. the Yeah. problem is that currently I'm just working on that role. It's purely in .NET, which I am using Hmm. the Blazor. Hmm. But I was thinking to work in Angular, but they are not considered. So if even if I told in Angular that I have experience, but Hmm. in further if I work too in Angular, so I will not get much confidence on working on that. So सी how? वो आपका प्रैक्टिस पे ही डिपेंड करेगा. राइट. इफ यू आर नॉट कॉन्फिडेबल, देखो आपको थोड़ा बोलने में कॉन्फिडेंस होना पड़ेगा. अगर आप बोलने में कॉन्फिडेंस होंगे तो यू कैन क्रैक दैट. वो चीज़ ही फर्स्ट जो एचआर कॉल होता है ना, वेन एवर यू गॉट फर्स्ट कॉल Hmm. फ्रॉम एचआर साइड, सो वो आपका कॉन्फिडेंस ही देखते हैं. अगर आपका कॉन्फिडेंट हाई है देन ही आपका इंटरव्यू शेड्यूल होगा, अदरवाइज वो आपको Okay. ऐसे ही रिजेक्ट कर देंगे. तो टेक्नोलॉजी में आपको कभी भी आपको खुद को लैक नहीं दिखाना है. डोंट शो देम बिकॉज आई डोंट ऐसा हैव है कि एक्सपीरियंस. मैंने 2-3 एचआर से ये भी सुना था कि मैंने उनको बताया कि मैं अपडेटेड रहने के लिए एंगुलर्स के प्रोजेक्ट में, बट वो लोग डायरेक्टली बोले कि ये प्रोजेक्ट्स को कोई भी बना सकते हैं, तो यू नीड टू हैव अ वर्किंग इंडस्ट्रियल एक्सपीरियंस, तो उसके वजह से फिर वो शॉर्टलिस्ट ही नहीं किए. You don't have any industrial project on Angular?
इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट ऐसा मतलब इस कंपनी से प्रीवियस कंपनी में था प्योरली एंगुलर, बट तो अभी मेंशन जब मैं करो इस ना, आई हैव मेंशन 4 साल पुराना प्रोजेक्ट मेंशन किया है मैंने। उनको थोड़ी इंडस्ट्रियल पता है, उनको कहाँ पता है, उनको नहीं पता, राइट? आपको पता है, सो मेंशन दैट। ओके, डजंट मैटर आपने कब ओके किया है, कैसे किया है। द ओनली थिंग इट शुड बी इन योर रिज्यूमे। द सेम थिंग आई टोल्ड यू, मल्टीपल टेक्नोलॉजी दे शुड बी जस्टिफाई इन योर रिज्यूमे। ओके, अगर आपके रिज्यूमे में एंगुलर है ओके बट आप उनको आपको एक्सप्लेन करना पड़ा, इट मीन्स आपके रिज्यूमे में प्रॉब्लम है। यू आर गेटिंग माई पॉइंट? ओके अगर आपके रिज्यूमे में वो चीज़ें मेंशन होती तो वो क्वेश्चन ही नहीं आता कि डू यू हैव एक्सपीरियंस एंगुलर और नॉट, राइट? यू आर गेटिंग माई पॉइंट? yes अगर आपका एक प्रोजेक्ट that होता I है have एंगुलर पे, that I have mentioned in the resume about the Angular, but बट यू the डोंट हैव current मेंशन द प्रोजेक्ट मे बी। uh, in the project I have means I have worked on the front end part for this module, सो but the द problem सेम, is getting that in the current company in the client I have not mentioned on that mentioned the pleasure over there. नो यू हैव टू मेंशन इट। सी, in a profile summary you have to mention all technical stack, and I told you the current, if you are working current in different technology, so use word experience. And if you have a previous technology like I did, so you proficient, okay, or skilled Hmm. in, so it will consider you. So it's totally on your resume how it's look. Okay. 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 Okay, Okay. then we wind up for today. Yeah, thank you, We, Devendra. Thank you very yeah, much. Thank you so much. Thank you. yeah, Thank you, Devin. yeah, thank you. Thank you, Dev. Maybe tomorrow we have Naukri and LinkedIn profile regarding call. Sure, So sure. Chetan will let you know. Okay. Yeah, sure, sure. And it is the Thank you. most important call because how to hunting in Naukri and LinkedIn. So be available on for that call. Sir, could you please share that resume, sample resume and resume template? Yeah, I will share your resume demo template. Yeah, Yes, sure, sir. I will. Yeah, Thank you. Thank you, sir. Thank you, sir. thank you. You. Thank you, Dev.